Back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaka representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about GST annual computation in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM, Skill India. So moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. The presentation will be conducted by Miss Aarti. So Aarti, are you here? Yes, ma'am, I'm here. And the live demonstration will be done by Miss Tejasri. So Tejasri, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, and I am available. Thank you. Hearty welcome all of you. So now I request Aarti and Tejasri to proceed with your presentation. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, my screen is visible now? Yes, it's visible. Okay. Okay. Hello everyone, myself Tejasri. I'm here to present a webinar on GST annual computation in Tally Prime on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So here is our Rajlakshmi family. Welcomes to all of you. So let's begin with the first slide, GSTR1. GSTR1 is a monthly or quarterly statement of outward supplies to be furnished by all normal and casual registered taxpayers making outward supplies of the goods and the services or both, and contains details of outward supplies of goods and services. GSTR1 एक स्टेटमेंट है जो आपके सारे आउटवर्ड सप्लाईज और सेल्स को मेंटेन करता है गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल पे एवरी टैक्स पेयर्स और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को GSTR1 फाइल करने में। तो GSTR1 ये एक मंथली और क्वार्टरली आपको फाइल करना जरूरी है। ड्यू डेट, the due date of to file form GSTR1 for a given tax period is 11th day of the succeeding month in case taxpayers filing it monthly, and 13th day of the month succeeding at the 8th of the every quarter in case of taxpayer filing quarterly, or such other dates as may be extended by the government through notification. अगर मंथली आप GSTR1 फाइल कर रहे हो तो आपको हर मंथ के 11 डेट को फाइल करना जरूरी है, और अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो हर मंथ के 13 डेट को आपको फाइल करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड इज GSTR2. All purchase transactions of GSTR2 contains details of all purchase transactions of a registered dealer for a month. It also includes purchases on which reserve charge applies. The GSTR2 filled by the registered dealer would have been used by the government to check with the seller's GSTR1 for buyer and seller reconciliation. तो GST2 ये ऑल परचेस ट्रांजेक्शन्स है जिसमें आपके रिवर्स चार्ज परचेस भी इंक्लूड रहते हैं। ऑल रेगुलर डीलर्स को ये फिल करना जरूरी है, वो सब GSTR2 में आपका मेंटेन होता है। GSTR2 ये गवर्नमेंट और सेलर्स को GSTR1 चेक करने में और रिकंसिलेशन करने में यूज होता है। ड्यू डेट, due date of GSTR2 is a monthly return that allows the taxpayer to declare and summarize the details of inward purchases of all taxable goods and or services. ये रिटर्न आपको मंथली फाइल करना है जिससे आपकी पूरी इनवर्ड परचेस की डिटेल समराइज होंगी। नेक्स्ट स्लाइड इज GSTR3B. GSTR3B is a simplified summary return, and the purpose of the return is for taxpayer to declare their summary GST liabilities for a particular tax period and discharge the liabilities. A normal taxpayer is required to file form GSTR3B returns for every tax period. Due date is the due date of to file form GSTR3B for a tax period
is 20th of every month whose turnover is below 5 crore and 24th of every month whose turnover is above 5 crore. So GSTR 3B सिंप्लीफाइड समरी है जो आपके टैक्स पेयर्स के लिए है और डिक्लेयर कर रहा है कि आपके जीएसटी लाइबिलिटीज और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सारे लाइबिलिटीज डिस्चार्ज करने के लिए। उसका ड्यू डेट है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको 20th डेट को आपको फिल करना जरूरी है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अबाव है उनको 24th ऑफ डेट को फाइल करना जरूरी है। E-return. With Tally Prime, you can file GSTR1 in 3 easy ways by generating JSON from the Tally Prime by using the GST offline tool or by filling directly on the GST portal. GSTR1 includes the details of all outward supplies made in a given period. Tally Prime exports GSTR1 returns in the latest format compatible with latest version of validation APIs used in offline tool. सो टैली प्राइम में आपको GSTR1 फिल करने के लिए 3 इजी वेज दिए गए हैं। टैली प्राइम में आप जेसन फॉर्मेट में आपका ई रिटर्न एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप जेसन फाइल को आपके जीएसटी ऑफलाइन टूल में डालने के बाद वहां से डायरेक्टली GSTR के पोर्टल पे फाइल कर सकते हो। ये आपके सारे आउटवर्ड सप्लाईज को इंक्लूड करके फाइल करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिस आरती, प्लीज कंटिन्यू विथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू। Thank you, Tejasvi. Hello everyone. You. Aarti, your voice is breaking. Aarti? Hello. Yes, Aarti. Hello everyone. Welcome to Tralakshmi Solutions Private Limited. Before going to start the practical session, I want introduce myself. My name is Aarti Narode from Tralakshmi Solutions Private Limited. So आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि ट्रेनिंग ऑन जीएसटी एनुअल कंपटीशन इन टैली प्राइम। तो सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम, माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, it's visible. ओके, थैंक यू। अभी मैंने यहाँ पे कुछ जीएसटी के सेल एंड परचेस के बिल बनाए हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली हम रिपोर्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमें रिपोर्ट देखने के लिए जाना है गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद में जीएसटी रिपोर्ट्स। पहले हम देखेंगे जीएसटी R1। जीएसटी R1 में हम सेल एंड क्रेडिट नोट के बिल हमें यहाँ पे जीएसटी R1 में शो होते हैं। तो इंक्लूडिंग इन रिटर्न्स, मतलब कि जो भी हमारे R1 फाइल रिटर्न करने के लिए जो भी बिल हमारे पास रेडी है वो हमें इंक्लूडिंग इन रिटर्न्स में शो होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेल के बिल बनाए हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग इन HSN समरी, मतलब जो बिल में हमने HSN नंबर डाल के बिल बनाए हैं वो बिल हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन HSN समरी, मतलब कि जो बिल में हमने HSN नंबर नहीं डाले हैं वो बिल हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है नॉट इन दिस रिटर्न्स, मतलब कि जो R1 फाइल रिटर्न R1 के बिल छोड़ के जो भी बाकी बिल्स है वो हमें नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न्स में यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें ये परचेस के बिल यहाँ पे शो हो रहे हैं, सेल के एक भी बिल हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अनसर्टन ट्रांजैक्शंस, मतलब कि यहाँ पे हमें जो जीएसटी R1 में मिसमैच है, जो बिल में हमारे मिसमैच है वो बिल हमें यहाँ पे शो होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिल मुझे शो हो रहा है वो आप यहाँ से रिसॉल्व भी कर सकते हैं। क्या मिसमैच है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाई इन वाउचर्स, मतलब हम ओपन करके देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हमारा जो टैक्स अमाउंट है उसमें डिफरेंस आ रहा है 15 रुपीज का। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है Alt W का, हम यहाँ पे Alt W करेंगे रिकम्प्यूटेड, तो यहाँ पे जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ से वो मिसमैच
चला गया। देखो अभी हमने यहाँ पे ही वो मिसमैच मतलब सॉल्व कर दिया। उसके बाद में अभी हम ई रिटर्न फाइल, अभी हमें R1 का ई रिटर्न फाइल रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे ई रिटर्न का ऑप्शन शो हो रहा है, ई रिटर्न करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जेसन। यहाँ पे फोल्डर का पाथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंड कर देना है और यस कर देना है। अभी ये हमारा ई रिटर्न फाइल रेडी, ई रिटर्न फाइल करने के लिए हम यहाँ पे रेडी है। यहाँ से हम ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है R2, GST R2। GST R2 में परचेज के बिल होते हैं। फर्स्ट है इंक्लूडिंग इन रिटर्न्स। यहाँ पे हमें GST R2 के जो भी बिल है वो हमें यहाँ पे सभी बिल शो करते हैं। GST R2 में जो भी बिल आते हैं वो अभी हमें यहाँ पे शो करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमें परचेस के बिल हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। इज रेडी फॉर रिटर्न्स, R2 रिटर्न इनवाइस रेडी फॉर रिटर्न्स। रिटर्न्स करने के लिए हमें जो भी बिल हमारे है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इनवाइस विथ मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, जो भी परचेस के मिसमैच है, परचेस मतलब GST R2 में जो भी मिसमैच है वो बिल हमें इनवाइस विथ मिसमैच इन इंफॉर्मेशन में यहाँ पे शो होता है। मेरा एक बिल यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम देखते हैं क्या मतलब क्या मिसमैच आ रहा है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइड। यहाँ पे हमने जो ओरिजिनल इनवाइस नंबर है पार्टी का, बिल का, वो नहीं डाला है और डेट नहीं डाली है। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल इंटर करके बिल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम ओरिजिनल इनवाइस नंबर डालेंगे। जो भी इनवाइस का ओरिजिनल इनवाइस नंबर होगा वो डालेंगे, डेट डाल देंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। वो मिसमैच यहाँ से चला गया। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन HSN समरी। मतलब यहाँ पे भी सेम जैसे R1 में था वैसे ही यहाँ पे GST R2 में है कि जो भी HSN समरी में जो भी बिल में हमने HSN नंबर नहीं डाला है वो बिल हमें यहाँ पे शो होते हैं। नेक्स्ट है GST R3B। GST R3B में क्या होता है, GST R1 और R2 का जो कंबाइंड रिपोर्ट होता है वो हमें GST R3B में आता है। R3B का ई रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें GST R1 और R2 का जो मिसमैच सभी निकालना पड़ेगा और उसके बाद में ही हम R3B फाइल रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी हमने जो R1 और R2 में मिसमैच थे वो हमने निकाल लिए है। अभी हम R3B रिटर्न करने के लिए रेडी है। तो हम यहाँ पे Alt E करेंगे, ई रिटर्न। अभी हमें क्या करना है, जो ऑफलाइन टूल रहता है GST के पोर्टल पे जाके हमें यूटिलिटी का ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक्सेल में लेंगे और जो हमने ऑफलाइन टूल डाउनलोड किया है GST के पोर्टल से उसका पाथ हमें यहाँ पे फोल्डर पाथ में सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे फाइल का नाम लेके यहाँ पे सेंड कर देंगे। अभी ये हमारा यूटिलिटी का फाइल एक्सेल में ऑफलाइन टूल से हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है एक्सेल में। अभी वेरिएशन हो करके जेसन में जेसन फाइल में उसका जेसन फाइल हो जाएगा और बाद में हम फाइल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद में है GST एनुअल कंपटीशन। यहाँ पे क्या है, जैसे R1 और R3B का रिपोर्ट होता है, जैसे R1 और R3B का रिपोर्ट होता है वैसे ही GST एनुअल कंपटीशन का रिपोर्ट है। यहाँ पे 1 साल का रिपोर्ट दिखाया जाता है। ये रिपोर्ट हम डायरेक्टली टैली से GST के पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ओपन GST पोर्टल, Alt V उसकी शॉर्टकट की है। इससे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, डायरेक्टली टैली GST के पोर्टल पे जाएंगे और वहां से हम ये फाइल कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Aarti and Tejashree, for your presentation.
So now I request Bhagwati sir to for the overview of the today's session. Yeah, thank you, team. Myself is Bhagwati Thandaria from Rajalakshmi, as you know, as usual. So, overall idea is today's sessions key how we can smooth our GSTR 1, GSTR 2A, GSTR, all the compliance, whatever, जो हम टैली के थ्रू कैसे स्मूथर वे में यूज कर सकते हैं. So normally we are doing every day-to-day transaction like sales transactions, purchase transactions, credit note and debit note. All these transactions are correlated to the GST. So ये सभी transactions को जब हम बुक कर रहे हैं तो naturally GSTR returns automatic, अगर आप सॉफ्टवेयर टैली यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए. तो इन चीजों को करने के लिए हमें क्या प्रोसेसेस करने चाहिए, जो आज हम रिपोर्ट पे बात कर रहे थे कि हमने नॉर्मली ट्रांजैक्शन सब कर लिए हैं. अब वो ट्रांजैक्शन करने में हमारी कोई भी टाइप की मिस्टेक अगर हो गई है तो हम उसको ऑडिट कर सकते हैं टैली के थ्रू. और आफ्टर ऑडिट करने के बाद में इवन टैली इतना अच्छा स्मार्ट टूल्स है जहां पर वो हमें बताता है कि आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपने मिस्टेक क्या करी है. तो यू हैव नो नीड टू गो और आइडेंटिफाई द मिस्टेक, जस्ट यू गो एंड क्लिक इन द टैली पर्टिकुलर दैट रिपोर्ट. वहां आपको वो पता लगता है कि ये रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, जस्ट आप वहां जाइए, उसको सॉल्व कीजिए एंड द ट्रांजैक्शन विल बुक इन द GSTN रिटर्न्स. तो ये जो सिनेरियो है इसे आपकी डे टू डे लाइफ को काफी इजी कर देता है. नंबर 2, आपका GST का कंप्लायंस पूरा स्मूथर वे में जाता है जहां कोई मिस्टेक नहीं होती, जिससे आपको अपकमिंग कोई भी पेनाल्टीज वगैरह कोई भी आपको नहीं आती. नेक्स्ट, आप रिटर्न जो फाइल करते हैं आपको मैनुअली एक्सेल में डेटा लेके फिर से रिटर्न बनाने की मैनुअल जरूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम सेविंग हो जाता है. और नेचुरली ह्यूमन एरर होते हैं, तो जो ह्यूमन एरर जो मिस्टेक से कॉपी पेस्ट में डेटा में जो होते हैं वो आपके मिनिमल हो जाते हैं. इवन चूंकि कॉपी एंड पेस्ट नहीं है, ऑटोमेशन के थ्रू है, सिस्टम के थ्रू है, प्रोसेसर सिस्टम से हो रहे हैं और वो आपको आइडेंटिफाई भी कर रहा है सिस्टम AI के थ्रू. तो आप वहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ हो जाता है, जहाँ पर कोई मिस्टेक होने की चांस ही नहीं होती. और इसके एक्सेस भी आप अलग अलग लोगों को अपने हिसाब से दे सकते हैं. कट ऑफ डेट डाल सकते हैं कि आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया तो उसके यहाँ कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकते पुराने डेटा को. उसके बेस पे आप जब ट्रांजैक्शन स्मूथर में करेंगे तो आपके ओवरऑल चीजें, आपका बिजनेस, यू कैन रन योर बिजनेस इन द वेरी स्मूथर एंड वेरी डिसिप्लिन वे, जहाँ आपको GST से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं आने जा रहा है. सो दिस ओवरऑल एजेंडा इज कि आपका GST का जो वर्किंग है वो कैसे ऑप्टिमाइज हो सके, कैसे स्मूथ हो सके और कैसे उन चीजों को आप टैली के थ्रू डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें GST पोर्टल से. सो ये आइडिया है आज हमारे सेशंस का. और इन सभी चीजों को करने के लिए डेफिनेटली राजलक्ष्मी का टीम आपके साथ है. यू कैन कनेक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर जो आपके साथ ऑलरेडी बिजनेस में कनेक्टेड, डे टू डे कनेक्ट कर रहे हैं सपोर्ट में. इसके साथ साथ आपके पास अगर कोई नंबर नहीं है तो जस्ट मैं आपको हमारी राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस के वो पर्टिकुलर नंबर डाल दे रहा हूँ चैट में, जहाँ पर आप नंबर नोट करें. आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर नंबर्स पे, जहाँ आपको कंप्लीट सपोर्ट एंड सॉल्यूशन मिलेंगे. सो इससे आपका काम आसान हो जाएगा. दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द आवर टुडे एजेंडा. So that's it from my side. Anga, is over to you. You can continue with another things if you have. Yeah, thank you so much, sir. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the latest updates. So thank you so much for joining today's session. So we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye.